Good morning, students. Beta, as you all know that today our topic which we will discuss in the class is rural urban picture of the poverty trends. You are very well aware that today we will be discussing this topic, and this topic is rural urban picture of poverty trends. To explain this topic to you, beta, I have to make a table first of all. I will try to make it as fast as it is possible. So this is, I am making your table. Here I am writing your year 72, 73, 1987, 88, 1993, 1994, 1999, 2000, 2004, 2005, and then beta 2009, 2010, and at last 2011 and 12. So these are the years which I have tried to write it. Clear beta? Now I will draw the margins. Clear beta? This is over here I am writing your rural, and here I am writing your urban and total. It is your 54, then it is 42, 39.1, 38.2, 37.3, 32.4, 27.1, 23.6, 41.8, 25.7, 33.8, 20.9, and it is your 25.7, 13.7. Clear? These are your some pictures of poverty trends. 54, 42, 39.1, 38.2, 37.3, 32.4, 21.7, 23.6, 41.8, 55.7, 33.8, 20.9, 25.7 and 13.7. Clear beta? Now I will tell you total. When it was calculated in overall total in a country, when it was calculated, that was 51, 38.9, 36.0, 26.1, 37.2, 29.8,
and 21.9. This table has a source. Every table has some source, and the source of this table is Economic Survey 2013, 14 and Planning Commission and Planning Commission and Planning Commission estimated by Tendulkar method. This table has a heading also. The heading of the table is percentage of population below poverty line. Percentage of population below poverty line. Clear beta? This is the heading of the table, and this is your table which I had to be discussed with you. When you will compare it, you will find out that at each and every point when you are having of comparison of rural and area, जहाँ जहाँ पर आप रूरल एंड एरिया अर्बन को कंपेयर करेंगे, हर लेवल पे आप देखिए, हर लेवल पे बेटा आपकी अर्बन पॉवर्टी जो है वो रूरल के कंपैरिजन में कम है. इज इट क्लियर? योर अर्बन पॉवर्टी इज लेस देन योर रूरल पॉवर्टी. लेट्स सी. Here rural poverty is 54, urban is 42. Here rural is 39, urban is 38.2. Here rural is 37.3, urban is 32.4. Here your rural is 27.1, urban is 23.6. Here yours 41.41.8 and here it is 25.7. Then is your 33.8 and 20.9. हेयर ऑल्सो बेटा इट इज़ 25.7 एंड 13.7. इस लाइन को आप देखिए, ये पूरी लाइन ऊपर वाली लाइन से कम है. इसका मतलब ये पूरा टेबल जो है ये शो करता है इन एवरी ईयर when rural and urban poverty is analyzed at a time we find that always rural poverty is greater than अर्बन पॉवर्टी. इस टेबल का ये एक मेन फीचर है बेटा
कि जहाँ पर भी आप देखेंगे, जैसे भी आप देखेंगे, आपकी जो रूरल पॉवर्टी है वो हर पॉइंट पे अर्बन पॉवर्टी से ग्रेटर देन है। क्लियर है? क्लियर है बच्चे? एंड देन नाउ द थिंग विच आई विल डिस्कस विद यू इज द टॉपिक ऑफ रूरल पुअर and urban poor. Rural poor and urban poor. Is it clear? In this rural poor and urban poor, first thing which we will do, that is rural poor. Rural poor exactly होते कौन है? First of all, let me define it. These includes landless, agricultural workers. Landless agricultural workers. Along with they include marginal holders. What they include? Marginal holders and tenant at will. देखो, इसमें 3 चीज़ें उन्होंने बताई हैं। लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबरर फर्स्ट, फिर उन्होंने बताया मार्जिनल होल्डर्स, और फिर बताया टेनेंट्स एट विल। जो रूरल एरियाज़ में बेटा पुअर्स होते हैं वो थ्री नेम्स में उन्होंने डिफाइन किए हैं। लैंडलेस एग्रीकल्चरल वर्कर्स, ऐसे वर्कर्स जो फील्ड में काम करते हैं, खेतों में काम करते हैं, बट उनके पास बेटा खेत खुद के नहीं है, वो किसी और के खेत में काम करते हैं। क्लियर? देन इज योर मार्जिनल होल्डर्स, ऐसे वर्कर्स जिनके पास थोड़ी बहुत ज़मीन है। एंड देन टीनेंट एंड विल, जो अपनी मर्जी से टीनेंट का काम करते हैं। टीनेंट मीन्स कहीं पे छोटे मोटे वर्कर का काम करते हैं, कोई भी काम करते हैं किसी के घर में, किसी के खेत में जाके। दे आर कॉल्ड टीनेंट एट will. Is it clear beta? Now we will come to the next is, that is urban poor. That is urban poor. अब urban poor कौन है ये हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। What is urban poor over here? These includes migrants from the rural areas in search of employment, then casual factory workers
and self-employed serving largely as street vendors. स्ट्रीट वेंडर्स। क्लियर है बेटा? इसके अकॉर्डिंग हमें क्या पता चलता है, उन्होंने अर्बन पुअर्स में 3 तरह की कैटेगरी ली हैं। पहली, माइग्रेंट्स फ्रॉम द रूरल एरियाज इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जो गांव छोड़ के लोग जो शहरों में आते हैं जॉब के लिए, फर्स्ट कैटेगरी में वो लिए हैं। फिर लिया है कैजुअल फैक्ट्री वर्कर्स, जो फैक्ट्री में काम करते हैं, जो लोग छोटी मोटी फैक्ट्रीज में काम करते हैं। और तीसरा जो उन्होंने लिया है, दे आर सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल, जो लोग खुद से एम्प्लॉयड होते हैं, जैसे सब्जी बेचने वाला, फल बेचने वाला, जो गलियों में घूमते, बेटा स्ट्रीट वेंडर्स। क्लियर है? गॉट इट? नाउ along with it, this urban poor, ये जो अर्बन पुअर है, इसके लिए एक स्टेटमेंट है बेटा, दैट इज अर्बन पुअर आर लार्जली द spill over of rural poor, spillover of rural poor migrating to urban areas इन सर्च ऑफ जॉब्स। ये मैंने आपको कल भी बताया था कि जो अर्बन लोग हैं वो अपनी पॉवर्टी का इंक्रीज होने का कारण किन्हें मानते हैं? रूरल पुअर्स को, इन सर्च ऑफ जॉब्स। इसमें यही है कि अर्बन पॉवर्टी का जो मेन रीजन है वो ये है। स्पिल ओवर मीन्स बेटा फैलना। व्हाट इज स्पिल ओवर? फैलना। क्लियर बेटा? गॉट इट? नाउ वी विल मूव टू योर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज, व्हाट इज दैट बेटा? डिफाइनिंग एंड redefining, defining and redefining the poverty line। इस टॉपिक में हम क्या पढ़ेंगे बेटा? इस टॉपिक में हम ये पढ़ेंगे कि जो पॉवर्टी लाइन है उसको डिफाइन और रीडिफाइन कैसे किया जाना चाहिए, उसके क्या इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। क्लियर है बेटा? सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पुरानी पिक्चर को देखते हैं। द पुरानी पिक्चर के अकॉर्डिंग क्या है? देयर आर नो स्टैंडर्ड yardsticks of divining a poverty line।
क्या बेटा? कोई प्रॉपर यार्ड स्टिक, यार्ड स्टिक मीन्स मेजरमेंट टूल, नापने का सामान। ऐसा कोई स्पेशल यार्ड स्टिक नहीं है कि जिससे हम पॉवर्टी को नाप पाए। मेनली इट इज defined by considering the minimum consumption needs of people। लेकिन जो इसको डिफाइन किया जाता है बेटा, मेनली जो यूज होता है वो किसके अकॉर्डिंग वो डिफाइन कर दिया जाता है? दैट इज बीन डिफाइंड अकॉर्डिंग मिनिमम कंजप्शन नीड्स ऑफ द पीपल। क्लियर बेटा? बट there are so many argues against the minimum consumption needs must also include secondary education लेवल। क्लियर है बेटा? इसके अकॉर्डिंग ये डिमांड की जाती है कि जो मिनिमम कंजप्शन नीड्स हैं उसके साथ साथ मिनिमम कंजप्शन नीड्स में ही सेकेंडरी एजुकेशन लेवल को भी ऐड ऑन करना चाहिए पॉवर्टी लाइन को डिफाइन करने के लिए। उन लोगों को पोवर नहीं माना जाना चाहिए जो अपने बच्चों को सेकेंडरी लेवल पर एजुकेशन प्रोवाइड कर पाते हैं, और उनको पुअर्स में काउंट करना चाहिए जो अपने बच्चों को सेकेंडरी लेवल का एजुकेशन नहीं प्रोवाइड करते। आपको पता ही है बेटा, एजुकेशन लेवल 2 टाइप के होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी इज योर टिल 5th, सेकेंडरी इज योर टिल 10th। तो ये माना जाता है कि ऐसे इनको भी इंक्लूड करना चाहिए। अब बेटा जो नेक्स्ट थिंग है वो हम पढ़ेंगे, व्हाट विल हैपन इफ poverty line is redefined। देखिए, पॉवर्टी लाइन अगर रीडिफाइन हुई तो 2 ही चीजें होंगी, इट विल बी बिलो द एग्जिस्टिंग लेवल या फिर इट विल बी above the existing level। अगर तो वो बिलो द एग्जिस्टिंग लेवल आती है, अगर तो बिलो द एग्जिस्टिंग लेवल हो जाती है, सपोज दिस आई एम सपोजिंग, सपोज
existing level is 2500। ठीक है, ये मानना है बेटा, मैंने एक्चुअल वैल्यू नहीं है, ये मैंने मानी है। सपोज एग्जिस्टिंग लेवल इज 2500। तो इस केस में आपका क्या होगा, मान लो आपने 2500 की जगह 2000 ले ली। कितनी ले ली? 2000। दिस 2000 इज लेस देन 2500। इसका मतलब बेटा आपका नंबर ऑफ पुअर्स बिलो पॉवर्टी लाइन क्या हो जाएगा बेटा? नंबर ऑफ पुअर्स बिलो पॉवर्टी लाइन विल इंक्रीज, बढ़ जाएंगे आपके। जो पहले आप 25 से बिलो के काउंट कर रहे थे, वो अब आपको 2000 से बिलो के काउंट करने पड़ेंगे। तो बेटा ये कम है, तो इस कम में आपका क्या होगा? नंबर ऑफ पुअर्स विल डिक्रीज ओवर हेयर, सॉरी इट विल कम डिक्रीज। ये आपके कम हो जाएंगे बेटा, ठीक कर लेना इसको। जब आप उस स्टैंडर्ड को कम कर दोगे तो आपके नंबर ऑफ पुअर्स जो आपको फाइनली मिलेंगे दे विल बी लेस। इसको मैं दोबारा बता रही हूँ, अगर आप पॉवर्टी लाइन के लेवल से कम करेंगे तो आपके नंबर ऑफ पुअर्स जो है वो डिक्रीज हो जाएंगे। और अगर आप इस केस पे आते हो, सपोज यू आर फिक्सिंग इट नाउ न्यू है, ये न्यू लेवल फिक्स कर रहे हैं, ये भी आप न्यू लेवल फिक्स कर रहे थे। अगर आप न्यू लेवल 3000 फिक्स कर देते हैं, जब आप इसको कंपेयर करोगे, दिस 3000 इज ग्रेटर देन 2500। ठीक है, और जब ये ग्रेटर देन 2500 होगा तो बेटा आपके नंबर ऑफ पुअर्स बिलो पॉवर्टी लाइन विल इंक्रीज। नंबर रीडिफाइन में अगर वैल्यू आप बढ़ा देते हैं तो नंबर्स ऑफ पुअर विल इंक्रीज, और रीडिफाइन में अगर आप वैल्यू घटा देते हैं तो बेटा आपके जो नंबर ऑफ पुअर्स है वो डिक्रीज हो जाएंगे। अब मैं आपको अच्छे से यहाँ पर लिख देती हूँ। फॉलोइंग आर following can be effects of redefining. Following can be the effects of redefining poverty line. First, if it is refixed at the higher level, we shall get larger number of poor people below poverty line. सेकेंड बेटा आपका, इफ इट इज refixed at the lower level, we shall get smaller number of poor
people below poverty line। इन दोनों ही केस में बेटा कंपेयर किससे कर रहे हैं? एज कंपेयर टू प्रीवियस पॉवर्टी लाइन एंड प्रीवियस नंबर ऑफ पुअर्स। क्लियर है? अभी एक जो लास्ट पॉइंट रहता है, फाइनल कंक्लूजन जो है, दैट इज thus we may not get a correct picture of the economic and social status of the people over time in case poverty line is redefined or changed। लास्ट में कंक्लूजन पॉइंट में क्या कहना है बेटा? यही कहना है कि अगर रीडिफाइन कर देंगे ना तो करेक्ट पिक्चर नहीं मिलेगी हमें, हमारे इकोनॉमिक और सोशल स्टेटस का जो करेक्ट पिक्चर है कि वो इम्प्रूव कर रहा है या बैकवर्ड होता जा रहा है, उसकी करेक्ट पिक्चर हमें नहीं मिलेगी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर टुडेज क्लास। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।